25%. संजय जी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा था। स्क्रीन आप वो शेयर कर लेंगे। शेयर किया? अच्छा, शेयर नहीं, जस्ट होगा, वो शेयर कर लीजिए। हो गया शेयर सर? नो, नहीं हुआ था। आई एम नॉट एबल टू सी। Yeah, now it is visible. Not visible, sir? Yeah, visible. Basically, we have taken the project for increase the vehicle loadability from 76% to 95%. As we have saved the cost, it's a basically cost-saving projects as well as the OTDS improvements project. The problem statement is vehicle utilization not properly basic right now. Thus, we have the low metal dispatch and high freight cost. Its impact due to the requirement timely. Goal statement: vehicles should be utilized with the full capacity and space availability from the 76% to 95%, and reduce the fan freight cost. Project scope is logistics section basically. So I am the project leader Sanjay Sharma, sponsoring Mr. Rakesh Kanpal sir, coach is Mr. Alok Sharma, my co-team member is Mr. Ajay Gautam, is a logistic guy, category Six Sigma project, and project timeline is Feb 21 to July 21. Mention the KPI also. How can you remove this? Okay. Yes. Basically, if you just back, the big impact of this external customer satisfaction, cost savings, and efficiency increase. My KPI is vehicle loadability increase. Initially, we have loaded the vehicle at the 76%, and we have taken the target of 95%. Problem is definition trees. We have making the low utilization, high cost, freight cost of the fan and UTDS effectively. Basically, we are dispatching the two families, product families, one in fan, second one in WD. So we have taken the project in fan space starting. So dispatch area is receiving and scanning, vehicle types is checking the vehicle verification and other shit. Metal dispatch, proper stacking, variant wise, and inventory deletes. Now, Mr. Ajay Gautam is will explain to each and everything. I will give the 5Y 2H analysis. What vehicle load availability low oblique ODS loss. Why vehicle capacity not as per standard. Where logistic area. When July 20 to December 20. Who logistic in charge? How freight cost increase? How much utilization? 66%, 76%. So process, production to dispatch, material incoming, and second scanning. Third, loading through conveyor, ready for dispatch. Month-wise, freight value in lakhs, July 20. Vehicle load availability, July 83%, August 71%, 81%, October 73%, November 76%, and December 75%. Vehicle model है टाटा 1613 and टाटा 1512 and एकर कैपेसिटी 15 टन, 9 टन and 77.5 meters. Okay. Yes, sir. There is any question regarding this? Basically, we have taken the project of the. Basically, the Ajay is showing that we have using the three types of vehicles here. Tata's is the big vehicles. It's a 15 empty vehicles. Is the standard size is 22 length, width, and height. We already mentioned on there.
basically we have used only the major contribution of the out of 3 vehicle we are using of the 2 vehicle, Tata 1613 and 1512. So yeah, the freight cost of this in this month now, in the month of July, we have given the 5,66,000. Okay, the loadability is slightly increased in month of July, 83%, but in the month of August, 71%, 81%, whatever the showing the overall average is coming in 76%. So our target, we have taken this target due to our freight cost to continuously increase, and we want to reduce our freight cost to fan per fan, so that we have taken this projects. Okay, understood that. Now, first, So it's in fact basically it's a cost saving project. Yes. Yeah. What you're saying? Can you repeat, sir? No. Basically, it's a cost saving project, and so that saving. we will increase our efficiency. Yes. So let's come. So CTC, right? Okay, CTC, CTD. Okay, can you come back on the first sheet? First sheet. Yeah. This one. Yeah. Now, when we calculate this 76% or 80%, how you calculate vehicle? Yes. Yeah, I am saying when we calculate. Basically, yes. How you calculate the capacity or loading efficiency? Can you give some brief on that information? Yeah. Basically, once the vehicle we reach our points now, we have observed that we have loaded the vehicle not as per our standardized. Basically, we have given in the last slide, we have already told you we have given the standardized vehicles of Tata 15, 16, 13. The standard size of the Tata vehicle is 20. Okay, we have once we will load the materials now, it is not proper stackings. We have load the metal in the mixed loads. You need to basically as per the market demand, we have so many variants in the fans. Okay, so once we will load the vehicles, so once the metals come from the soft floor productions, we have just scanned the materials and load the materials earlier. Okay, now we are planning to load the material as per our requirement, and firstly we will stack the metal in the one-sided, and all the materials as per your SKU wise we will load, so that might be that it would be a great give us say that means efficiency increase, or you mean to say earlier we have observed that we have loaded the vehicle up to the height of the 6.5 feet. Basically, the transporters or union clearly refused to open the tarpaulins. Okay, so we have just discussed with the transporters. We need to increase our loadability. Basically, we are continuously, you mean to say increase the freight cost. So how can we reduce it? So we are continuously discussing with the transporter and unions, but did not agree. We are trying to get some solution from the transporter unions also. Yeah, I want to know one important thing is that you see this, suppose this is 76%, so 24% space left inside is visual, or you calculate through some parameter this 76%. मतलब ये आपका पूरा. No, we have calculated through some parameters. कैसे आप देखते हैं कि कितने क्वांटिटी आना चाहिए था, कितने कैसे कैलकुलेट करते हैं? I just wanted to know from you. Correct. Basically हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करा through our parameters के through के. Basically in the last slide I'm just showing you. It's a Tata 1613 जो standard size जो vehicles का है वो 22 feet length, 7.3 feet is the width and 7.5 is the height. It should be a standard size. But हम लोग जब loads कर रहे थे vehicles को, तो हम लोगों ने observe किया कि हमारा को 6.5 फीट की हाइट तक ले रहे, और सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन हमारा ये आया कि हम लोग मल्टीपल एसक्यूज उसमें लोड कर रहे थे एट द टाइम ऑफ, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस गैप रहता है, कार्टन्स के बीच में जो स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा, जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहेगा, उसमें जो गैप रहता है वो फुलफिलमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे थे. तो उसका रीजन ये रहता है हमारा जो मेटल्स का व्हीकल लोड हो रहा फुल्ली, बट इट नॉट फुल्ली यूटिलाइज. हम लोगों ने देखा सिस्टम्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं लेंथ विड्थ एंड हाइट को एज पर आवर स्क्वायर फीट, तो इट शुड बी अराउंड व्हाटएवर जो भी स्टॉक्स है वो स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर फीट आएगा. हमने जो उसको फाइंड आउट करा तो हमारा जो वॉल्यूम है जो हमने फिर हमने सेकेंडली देखा कि हमारे जो कार्टन्स हैं, जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस, उसका भी हमने मेजरमेंट लिया.
उसका मेजरमेंट उससे जब मैच किया तो इट शुड बी रिड्यूस। तो हमने बोला नहीं यार, हमारा तो लॉस हो रहा है। तो मैं अगर बोलूंगा तो ओवरऑल इस टाइप से हमने कुछ पैरामीटर, इफ आई से टाटा का ओवरऑल वॉल्यूम है एंड 22 एंड फिर मैंने अपना उसका वॉल्यूम लिया, फिर देखा नंबर ऑफ पैक्स उसमें वॉल्यूम में कितने आने चाहिए, देन वी रियलाइज कि उतने नंबर ऑफ पैक्स मैंने लोड ही नहीं किए करे। करेक्ट, सो अगर मेरे को सपोज लोड ही नहीं करे, राइट राइट राइट, 200 लोड करने हैं बट मैंने 180 किया, तो 180 बाय 200 into 100 काइंड ऑफ थिंग। सो इज समथिंग लाइक दैट। नहीं बेसिकली एक होता है कि लोड नहीं किए, एक होता है कि उसमें जब हम लोड व्हीकल्स को करते हुए आ रहे हैं तो फुल्ली लोड हो रही है व्हीकल। ओके, कार्टन के जो गैप्स है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। Wait, Sanjay. First of all, I really feel good कि ये यस, that is not related to quality or productivity और ये that is really appreciable कि आपकी जो टीम ये चीजें कर रही है। अब इसमें मेरे एक दो चीजें जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा उसमें वो करूंगा। If I am wrong, then आप मुझे बताना क्या। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप पहले जो भेजते थे मिक्स SKU भेजते थे एक गाड़ी में, राइट, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के, कोई जैसे अगर मान लो 1000 पीस हैं तो आपके 750 कोई साइज के जा रहे होंगे, 100 कोई और साइज के जा रहे होंगे, और आपके 50 अलग, 50 अलग, 50 अलग, तो आपकी लोडेबिलिटी फैक्टर कम हो गया उसमें, जो उसके वॉल्यूम के हिसाब से। राइट, और उसमें आपने मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि आपने उसमें स्टैंडर्ड भी अप्लाई नहीं किया होगा, पहले की बात है कि उसमें कि टाटा ये 1613 में जैसे 15 टन है तो मुझे इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल डालूंगा तो मेरा फिक्स बैठेगा। करेक्ट सर, एग्री सर, और यही सेम अगर मैं बोलूं अगर 1512 में मेरा केवल ये मॉडल ये वाले के लिए मुझे 1512 चाहिए। करेक्ट सर, पहले ये ऑब्जर्वेशन नहीं आते थे, राइट सर। क्या होगा तो उसकी वजह से आप लोडेबिलिटी इंक्रीज करने का जो बोल रहे हो। करेक्ट सर, अभी हमारे पास प्लान्स रहता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली व्हीकल्स को प्लान करते हैं। सही, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि मॉडल्स के ऊपर, अपना स्किल के ऊपर और व्हीकल के प्लान हम उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो वॉल्यूम यूटिलाइजेशन आपने बढ़ा लिया, हमें एक या तो हमें एक जगह पहुंच जाना चाहिए ताकि हमें ऐसा लिखना चाहिए प्रॉब्लम इन कंसेंट्रिसिटी एंड बेरिंग डाया। हमें इस पे काम करना है। अंकित आपको चलो संजय आप म्यूट पे हो। हेलो हेलो, Yes, Sanjay, we can hear. यस है ना, ओके ओके ओके, यस यस, yes, you can go ahead please. हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर, यस यस, वॉइस। यस हेलो सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आई कुड अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी कि आप सिलेक्शन ऑफ व्हीकल मॉडल एंड एसक्यूज के कॉम्बिनेशन से लोडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना? राइट, दैट स्ट्रेटेजी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज आती हैं 83, 76, ये वैल्यू जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसका बेसिस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। बेसिकली डिवाइड टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर हम ऑफ, लोग इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि हाँ, नंबर ऑफ फैन, राइट सर, गो अहेड, या एग्री, यस सर, वही है, नंबर ऑफ जो वॉल्यूम्स है उसको डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल व्हीकल का अवेलेबल वॉल्यूम है और आपका एक जो बैग जो भी आपने चढ़ाया उसका वॉल्यूम है, उससे निकालते हो आप, करेक्ट? यस सर, उसी से निकलेगा। तभी उसका एक्चुअली हम लोग क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हैवी मेटल्स नहीं है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक्स है, नॉट मोर देन। बेसिकली अगर हम लोग 15 टन का व्हीकल्स लगा रहे हैं तो अगर हम फुल
7 या 7 टन या 7.7 7.5 टन के आसपास की लोडिंग कैपेसिटी उसकी डाउन रहती है, बट वॉल्यूमेट्रिक में वो हैवी रहता है, वेटेड वो रहता है, वॉल्यूमेट्रिक रहता है, तो हमको वॉल्यूमेट्रिक में पूरा खेलना होता है। हाँ, तो वॉल्यूम में खेलना है आपको, वेट का इशू तो है ही। Yes, yes, yes. Okay. So now I can remember, if you are aware of that, because just this is an interesting project, you can take that. Kuch input I will give it. But have you heard in Japan there was an issue on the, there was a Kaizen or some innovation done. Have you heard? This is a very popular example. Interesting. I don't know how much it is truth, but it is very popular example in Japan. कि आपने देखा ये ट्रक्स पे फ्रूट्स और वो भी ना वेजिटेबल लोड करते हैं। आर यू अवेयर दैट? मतलब आपने देखा गोभी ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, हैव यू सीन? है ना? सो वो तरबूज ले जाता था। यस, ये तो देखा मैंने उसका। हाँ, सो तरबूज का जो ऐसा है ना, इट इज ओवल, तरबूज इज ओवल, राइट? सो व्हेन यू टेक दैट वाटरमेलन एंड ऑल, तो आपके बीच में स्पेसेस क्रिएट होंगे, करेक्ट? सो देयर वाज स्पेसेस क्रिएटेड, क्योंकि आपका से ओवल है, ऐसे है, तो आपका द यूटिलाइजेशन देयर विल बी ऑलवेज ए लॉसेस इन दिस स्पेसेस, करेक्ट? सो उन्होंने बोला कि हमें लोडिंग बढ़ाना है, लोड बढ़ाना है, जो यूटिलाइजेशन है। सो ये कह रहे हैं ये तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि आपका तो प्रोडक्ट ऐसा है। सो आई रिमेम्बर उन्होंने अपने साइंटिस्ट से बात की कि हमें स्क्वायर शेप्ड में चाहिए, हमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में चाहिए तरबूज, आप ऐसे बनाओ, उगाओ ऐसे, राइट, ताकि स्पेस लॉस ना हो। सो उन्होंने कहा इसका शेप चेंज कराओ आप, ये भी सर चाइना में भी सेम यही आया था। हाँ, सो दे हैव चेंज बिकॉज़ सेम ये भी चाइना में भी मैंने देखा था स्क्वायर में। हाँ, सो इट इज अबाउट हाउ यू मैनेज दिस स्पेस बेसिकली। So how you manage a cubic space through SKUs, through combination, and selection of the right vehicle, selection of the right load, planning and dispatch also is very, very important, because आपको क्या dispatch very important, right? That is very important. आप without delaying the shipment, that's very important, because आप truck load भी बढ़ा सकते हैं, but वो shipment हाँ, basically we have yeah. इसीलिए सर हमारा जो इसे बेसिकली हम लोग आप देखेंगे तो मेरा फर्स्ट उसमें मैं आपको शो करता हूँ एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉस्ट सेविंग और इफिशिएंसी इंक्रीज का जो मैंने रहा है, इसमें बेसिकली OTDF OTDS का आप देखेंगे इंप्रूवमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ ना सर, ये इसी का इसका एक बहुत बड़ा वो है फैक्टर है। क्योंकि हमारा क्या होता है बेसिकली, अगर मेरा कस्टमर का डिमांड है एग्जांपल मेरे को उसको चाहिए 2000 फैंस, ही सेड कि आई वांट 2000 फैंस, तो अभी 2000 फैंस के लिए मेरे व्हीकल का जो वो मेरा 1600 फैन या 1800 फैन सारा वटेवर, तो आई सेड कि नो बॉस, मैं तो 200 फैंस के लिए तो मेरे को सेकंड व्हीकल प्लान करना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड व्हीकल प्लान करता हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे को मतलब फ्रेट कॉस्ट लॉस भी होता है, प्लस OTDF भी मेरा लॉस होता है अगर मैं नहीं बेचता। तो उसके प्लान्स को भी हम लोग इंप्रूवमेंट इसमें देख रहे हैं कि अगर मैं उसको 2000 फैन सेम व्हीकल्स में अगर मैं देता हूँ तो मेरा दोनों चीज इंप्रूव हो रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है प्लस OTDS भी इंप्रूव हो रहा है। Okay, so I think it's a good project, and can you move to next? I want yes. to. Okay, this you explained. Can you go to 5W and all? Yes. Basically, we have mentioned on the other product families. Basically, we have working on the 2 product family, fan and WD. Yeah. So we have taken the product in the fan recently. Okay, WD is some different kind of we have dispatching. Basically, we have dispatched some export or in domestics. So we have mostly dispatch in WD metal in our SAFEX, our part load. You mean to say part load vehicles? In the some basically WD volume is very low. So we have not taken this project in the WD. Firstly, we have taken the project in fan. So that we have mentioned on the product families in fan and WD, the fan is the we have considered. Dispatch area, we have received the dispatch area. Firstly, we have received the material. Then we have scanned the metal, each and every metal we have scanned through our scanner, and the same process we have followed in the dispatch also. We have scanned the metal, then we will dispatch it. It's a basic reason we have tracking all the things in the whatever we have received in the physical receive and what we have the physical dispatch. So it's a correlated with each others. So we can track in the other so that we can reconcile the each and every dispatch. Whatever if we receive the 100 fans in a day, so same we have dispatch or not. If you have dispatched the 90 fans, definitely we have need to. You mean to say कि 10 fans the leftover in our stocks.
So we can reconcile in the, it's a very easy to reconcile also. So that we have mentioned on the dispatch area. Vehicle types, firstly we have, here we have mentioned the vehicle types. We have received the different type of vehicles that just we have already told you, 15-ton vehicle, 9MT vehicle and HR models vehicle. So depends on the vehicle availability in the unions, or you mean to say once the vehicle reach at our gate, firstly we have checking the each and every documents of the vehicle. He have having the insurance, pollution or whatever RC he is having or not. If you are not carrying all the documents, we have reject this vehicle. So firstly we have reject all the documents and then we went. Okay. Factory premises. Secondly, we have checked the, we have verified all the vehicle condition. If the vehicle floor is damages or some he have not having some tarpaulins or whatever, so we can reject this vehicle. Firstly, we have some documents or some physical vehicle condition with the part of this. So third one is we have considered the metal dispatch. Proper stacking variant wise, we have already discussed. We have stacked the metal as per our SKU wise and variant wise. Then we are check the inventory also mentioned here. Okay. Dispatch the material. We have checked. We can check the inventories. Whatever we have left over in our stocks or physical inventory should be matched with each other. Okay. Then the delivery the. Yes. Okay. I wanted to know from you कि अगर मेरे को dispatch करने से पहले, right? मेरे पास dispatch plan है और मुझे मालूम है कौन सा vehicle order करना है, सब वो टाटा 1615 या टाटा something या तो मेरे को एक particular type of vehicle और type of dispatch plan का theoretical loading rate निकल आएगा? Sir, theoretical loading rate निकला था roughly. It's not exactly, but plus minus 5% का उसमें टॉलरेंस रहेगा. मैं कंसीडर करता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि 161 टाटा 1615 में मैं प्लान्स कर रहा हूँ कि अगर मैं इसमें मेरे को 15 लोडिंग रेट आएगा ना, एक टेंटेटिव लोडिंग आपका प्लान्स आ जाएगा. तो आप जो प्लान कर रहे हो उसी के लोडिंग रेट से कंपैरिजन करना चाह रहे हो? व्हाट इज योर थिंकिंग? हाँ, बेसिकली हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं. फर्स्टली हम जब प्लान्स लेंगे प्रोडक्शन से कि आज का हमारा क्या प्लान्स रहने वाला है, क्या फैंस में क्या, देन हम लोग उसको जब चेक करेंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने इधर पैरामीटर जो हमारा आपने बात कर रहे थे अभी, पैरामीटर्स जो हमारे डिफाइन कर रखे होंगे, उस पैरामीटर्स में देखेंगे पर सीएफसी का जो साइजेस है क्या वो हमारे इस वाले व्हीकल्स में पूरा प्लान के हिसाब से पूरा डिस्पैच हो रहा है. 9MT में अगर व्हीकल्स में डिस्पैच हो रहा है तो वी विल प्लान फॉर द 9MT. अगर वो देखते हैं कि हम 15MT का प्लान बन रहा है तो देन वी गो फॉर द 15MT व्हीकल्स. तो हम लोग प्लान्स को पहले करेंगे, देन वी कॉल फॉर द व्हीकल्स कि 9MT करें या 15MT करें, व्हाटएवर व्हीकल्स. So basically I think you should make a utilization plan first and then see how much that plan you can achieve it. Right. Firstly we will make a plans, then we will call the vehicles and plan. एक आइडियल प्लान बनाओ कि मेरा ये लोड है और आइडियल ये सिचुएशन होगा और ये आइडियल डिस्पैच होगा और उस हिसाब से मेरी एफिशिएंसी इतनी आनी चाहिए, 82, 87, 85, 83 और ओवरऑल मेरा इतना अचीव होना चाहिए था. बट मेरे को आया 76%, 72%, 78%, whatever I got. Then there is a variation. वो क्यों हुआ? That will go into the reasons of that. कि why there is a variation. Right, वो रीजन क्या गलत ऑर्डर कर दिया इन्होंने ट्रक, या इन्होंने ऑर्डर ठीक किया था, स्टैकिंग गलत कर दी, लोडिंग में, वो फिर हम लोग एनालिसिस में तब जाएंगे. तो आप पहले एक आइडियल प्लान बनाओ. हाँ, राइट. ओके. मेरा ये डिस्पैच प्लान है नेक्स्ट वीक का. सो व्हाट शुड बी माय आइडियल प्लान रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल. 3 है या 4 है, उनका मैट्रिक्स बना के एक आइडियल प्लान एफिशिएंसी निकालो एंड देन यू मॉनिटर कि इस मंथ इस वीक में मेरा क्या लोडिंग एफिशिएंसी रहा. राइट सर. थियोरेटिकल वर्सेस एक्चुअल. थियोरेटिकल वर्सेस राइट. एंड देन विल फाइंड कितना है उसमें इफेक्टिवली, कितना वो वर्किंग इफेक्टिवली हम कर पाए. फिर क्यों नहीं कर पाए, विल फाइंड लॉजिक क्या है हमारा. वो गैप तो समझ आया हमें क्या है बेसिकली. देन वी यस. सो एक वीक का 2 वीक्स का ये करेक्ट, द गैप क्लियर होगा देन. एग्जैक्टली. राइट सर. इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, सो यू कैन टेक इट अप. यस. ओके, सो थैंक्स अ लॉट. ओके, थैंक यू. राइट, थैंक्स. थैंक यू. Yes, sir. I'm going to, sir, present my presentation, sir. Yeah. Yes.
Is it visible, sir? Hello. Yes, yes. No, Okay. So this is our project. no. It is visible, but somebody else make your. संजय आप अनशेयर कीजिए. संजय अनशेयर कीजिए आप. मैं एग्जिट कर देता हूँ उनकी वजह से. अब आप करो स्टॉप शेयरिंग के बाद. नो, यस, नाउ इट इज विजिबल. Screening. Yeah. Go ahead. Yeah. Okay, sir. So I'm going to present it as I'm Himanshu and I'm project leader. Our sponsor is Rakesh sir. Coach is Mr. Alok sir. Core team is Rohit Sharma from Quality and Santosh Dora sir from Paint Shop. And so here our project background is actually, sir, in January month we have launched 2 new models which are totally new for us due to their material we are using in those material models. Like we are using CRC covers instead of regular aluminum with star rotor, which is actually totally new for us. We are running these models with 70% efficiency due to high reaction at STR, causing high scrap percentage and low volume. So our problem statement is currently these models are running at 70% efficiency with scrap of 1.5%. So our goal statement is to target efficiency 95% and scrap value 0.4%. Project scope is in CNC, in assembly, in paint shop and vendor. So here is the efficiency graph of these 2 models in comparison with our fan, that is Rapid. As you're seeing that Rapid, we are running at 95%, and in these 2 models we are on average running at 70%. So so this is our problem definition tree, which is low efficiency in Tiger Hill and Josh hybrid models. So in division, we have 2 division, fan and WD, and we are considering fan. Further, it is in model, we have a lot of models like Rapid, Audi, Copter, but 2 models, that's why we are choosing these 2 models. In production, we are facing this problem in actually, finally, we are facing issue in fan assembly, but fan machining and paint shop is also in our scope. That's why we have already considering them. And in performance, we are losing our productivity. That is in cost, in phase of efficiency. That is 70%, and we are ultimately losing 30% efficiency due to some problems. And further, this is our 5W2H. Yeah. So for what in what 70% efficiency in Tiger Hill and Josh hybrid fans we are currently using, and in why high reaction leading to less efficiency and high scrap value, where we are facing this in assembly line when after launching of these models, who operators working online in quality inspector. So how fan not meeting standard actually, further how much is 30% efficiency we are losing. And further we have a break to 2 parts. That is, in left side we are showing in 22%, that is rework post inspection. It means that after fan manufacturing, the when the fan getting from rejected from STR, that is silent testing room in assembly line, what type of rework we are doing in assembly line. And further that 8% we are further we have bifurcate into rework launching of covers or our components onto assembly line. So it is like 3% tapping problem, 2% rotor fitment, 2% bearing fitment, 1% excess paint. And further, this is voice of customer. This voice of customer is basically of assembly line. So as there is customer needs and customer is assembly line, drivers and CTQ, we all have defined here, like defect free, the component from paint finish, no peel off, no scratches, no part to part shade variation, wear in top bottom cover, RPM less and high, no abnormal sound, dent in bottom cover, top bottom high wattage taping issue,
and all. So, and further, this is our end-to-end ceiling fan manufacturing process. Here, blade fabrication, from blade fabrication to PT, from cover CNC to PT, and then the powder coating, then all the parts feeding to assembly line. So all these shops are in our this project. Thank you, sir. Okay, coming back to your problem definition, can you come back now to the main slide? Yeah, the first slide, yeah. So basically what you are saying, you have changed the material from, aluminum to CRCA. In the yes, rest in rest of all of the models, we are using, sir, aluminum actually. Yeah, so you are changed in certain model, CRCA sheet. Yes, yes, yes. And this is done for what? Cost, because of cost. Actually, sir, Yes, new sir, yeah. cost-efficient models have been launched by R&D, in which they have tried to use CRCA covers for cost saving. These are budget models. Correct. So in this, the major change with respect to the existing fan is that the covers have been converted from aluminum to CRCA, and the rotor design has been changed from a normal round rotor. Rotor design Rest all normal round to a star-shaped rotor, a special rotor shape. okay. And when you have used this particular material, you have problem in different processes. Yes, yes, sir. Yeah. Can I share my screen to give you a visual? Sure, sure. So can you confirm my screen is visible? Just I stopped sharing the other guys. Now it is visible. Yes. So you see that this is the star rotor. Right. So the main change is that top and bottom cover are CRCA. The blade relief is also in CRCA, and this star rotor type rotor has been introduced. Okay. And there is no so the whole fan assembly process is same, but the internal structure has changed, the mating parts. Actually, in normal aluminum covers, we are doing the machining for the rotor fitment size. So Yes. it is a controlled size, but in this case, the CRCA covers, we are not doing any machining for the rotor fitment. Okay. So it's a bending and punching, bending, right? No, so yeah, It's a sheet metal operation. run and die in the sheet metal drawing operation, draw operation. So the size which we are getting in the die, we have to maintain the rotor according to that. Okay. So these are the certain process changes which affected our line output and increase the rejection. Okay. So if I compare earlier aluminum versus this, so how much is the difference? So in the previous one here, a rotor is a clamp in the itself in the top and bottom cover, but right now it clamp the top and bottom cover. You can see here. I will enlarge this photo. Yes. So you see that rotor is sitting in this collar. Yes. The rotor is guided in this collar. Initially, in our old fans, like we can see here, there is a machining in the cover and the rotor gets properly seated in this cover. Okay. So the top and bottom covers are locked in bottom cover, which gives a good alignment to the shaft. Okay. And there are chances of very less defects. But in this case, due to this arrangement, Yes. there is an issue in alignment of the top and bottom cover.
Okay. due to which the defects are there in STR, like touching sound, humming sound, bearing jam, starting jam. These are issues were reported in the STR, due to which rejection increased and the efficiency got down. Okay. And also there is one change that in aluminium cover we were able to machine the outer edges of the cover, these flat edges, and we were able to provide a chamfer at this corner. Yes. I will enlarge. This edge we were able to machine, but in this case we are only doing facing, and we are also having an issue of the burr, so we have to improvise in our CNC process also. Hmm. Yes, sir. Okay. And what about Start the, Okay, sharing sir. your presentation. what about the painting issues? And also this is related to assembly and STR, right? How it is Yeah, sir. other areas? ये वाला तो समझ आ गया आपका assembly issues and STR problem. You have written different things. Also in paint shop, also in CNC. Yes, CNC is pertaining to that covers which I told you. It was rotor. In rotor, we were facing issues of leg bending. In cover, we are facing issue of burr in the outer edge, variation in the bearing size, due to which the bearing fitment issue is reported in the line. There's a huge rejection of covers in bearing fitment. Okay. As the process is new, we have to adapt the downline process accordingly. Okay. And what about the paint shop areas? Sir, in the paint shop, yeah, we have a problem due to. Sir, Himanshu, Yes, Can I- yes. can I share again? Yeah, sure, sure. Like, sir, here in the bottom cover, Please project. we have an issue related to tapping. Before assembling the fan, we are Actually, in this case, in the older case, the tapping is in the cover. The powder don't go inside so too much. Can you And share, also, can you share this screen? yes, already shared. it is not shared. Yes. Yeah, is it visible now, sir? Now visible. Yes. So in old design, like in aluminium covers, there is tapping in the cover itself. Okay. And powder is going, cover being a soft, aluminum being a soft material, and the threads, screws are of mild steel, they are able to penetrate. So there is not much issue. But in this case, a lug is being welded on the cover for arresting the screw for motor assembly. And also nuts are welded in the top cover for the blade screws, in which when powder is going, the screwing operation is not happening. So we have to introduce a process of retapping of both the covers, so a screwing operation can be performed. Because sir, after sir, during welding operation, if any of welding spatter goes inside in this lug, it will block my thread. और अगर उसमें सर पेंट जाएगा तो वो और सर उसको टाइट कर देता है, इसलिए हमें सर प्री टैपिंग करनी पड़ती है 100% सर फैन बनाने के लिए बिफोर इन असेंबली लाइन. So painting also become critical in that case. Yes. Okay. So I just wanted to know, yeah, please. Just wanted to know that how much is the percentage rejection? Share your data. Yes, sir. So here's hello. Yeah. Yes, sir. So sir, हमें यहाँ पे sir actually we have taken efficiency we have taken here. For example, अगर हम बात
सर रैपिड मॉडल की बात करें अगर सर, मैं उसमें एक असेंबली लाइन पे 1400 या 1500 सर फैन बना रहा हूँ. ओके, इन दिस केस इन दिस मॉडल सर मैं सिर्फ वहां पे 900 या 800 फैंस ही बना पाता हूँ सर, ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीजन सर, कि वो रिवर्क पोस्ट इंस्पेक्शन होता है, मतलब बाहर जब वो एसटीआर में जाता है वहां से कुछ रिएक्शन आती है, या फिर लाइन पे लॉन्चिंग से पहले ही उसको रिवर्क करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल उसको टैपिंग करनी पड़ रही है, वहां पे उसको रोटर की फिटमेंट सही नहीं आती, बेयरिंग की फिटमेंट सही नहीं आती, क्योंकि वो एमएस का कवर है तो उसमें बेयरिंग का जो डायमीटर है वो मेंटेन नहीं हो पेंट हो जाता है, तो वो मतलब लाइन पे छोड़ने से पहले ही कुछ मटेरियल मेरा वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है सर, जिससे मेरी 30% जो एफिशिएंसी है वो लूज हो जाती है. And also, sir, after rework, 40% material reject हो जाता है, डायरेक्टली स्क्रैप करना पड़ता है हमें ड्यू टू द सर एमएस वेल्डिंग. यस सर. 30%. 40% के अराउंड सर मटेरियल सीधा डायरेक्ट मतलब रिजेक्ट ही हो जाएगा, मतलब जो स्क्रैप हम रिवर्क करते हैं ना आज के टाइम में, तो स्क्रैप अप्रूवल लेके स्क्रैप करना पड़ता है सारा सर. ओके ओके, रिवर्क नहीं कर पाते सर उसमें, तो वो 1. डैमेज हो जाता है एक्चुअली. आपका वैल्यू 1.5% स्क्रैप है, तो 40% रिजेक्शन है, 1.5% स्क्रैप है. इज इट लाइक दैट? नहीं, आपने स्क्रैप वैल्यू 1.5% लिखा ना. 30% रिजेक्शन है एंड 1.5% जो है, मतलब 30% रीवर्क है, 1.5% जो है वेस्ट मतलब स्क्रैप स्क्रैप. है. यस सर. अरे ओवरऑल में Go ahead, yeah. तो 30% डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं. एंड पोस्ट एंड प्री इंस्पेक्शन क्या है? यस यस यस. या सर पोस्ट इंस्पेक्शन है सर, जब सर मेरा फैन पूरा असेंबल हो गया, उसके बाद सर जब वो एसटीआर में गया वहां पे जाके सर जो रिएक्शन हो रही है. और सर रिवर्क प्री इंस्पेक्शन है कि वो जब असेंबल होना था उससे पहले ही जब जो सर वहां पे इंस्पेक्शन हो रही है, लाइक 3% टैपिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ मेरा टूट जा रहा है टैपिंग के दौरान, मेरा जो वेल्डेड पार्ट है वो वहां से निकल जाता है, जो सीधा मेरा डायरेक्ट स्क्रैप हो जाता है. ओके, रोटर फिटमेंट है जब वो बिठाते हैं उसमें, तो कि रोटर की फिट लग जाता है. बेयरिंग की फिटमेंट मेरी सही से नहीं हो रही है, बेयरिंग क्योंकि साइज मेरा मेंटेन नहीं हो पा रहा, कुछ एक्सेस पेट मेरा चला गया, वो मेरा हैवी हो जा रहा है कवर, या वो अनबैलेंस हो रहा है, तब सर वो मेरा स्क्रैप में चला जाता है या रिवर्क में चला जाता है. तो ये वो है सर, जो असेंबली पे अभी गया नहीं, वो उनसे पहले जो एक रिवर्क कर रहे हैं वो बैठ के वहां पे टैपिंग कर रहे हैं या रोटर फिटमेंट या जो भी. ओके. यस सर. और ये इतना सारा रीवर्क और करने पे आपका एफिशिएंसी लॉस भी हो रहा है. यस सर. यस सर. 30% जो लूज है वो ये है सर. अभी हम सिर्फ इसको 70 रिजेक्शन ये नहीं है कि हम एफिशिएंसी लेते हैं कि जो हमारा गुड फैन बना, एक्चुअली क्या है कि वो स्टेज बाय स्टेज अगर रिजेक्ट हो रहा है कुछ बेरिंग, जैसे हिमांशु ने बोला कि बेरिंग पे रिजेक्ट हो रहा है, वो मतलब हमारा जो एफिशिएंसी का टारगेट है वो एसटीआर है, जैसे काउंटर है जो एसटीआर है या पैकिंग है, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा फैन. हम पीछे से फीड पूरा दे रहे हैं लेकिन वो फैन रास्ते में फिल्टर हो रहा है ड्यू टू रिजेक्शन एट वेरियस स्टेजेस. फर्स्ट टाइम थ्रू नहीं हो पा रहा है बेसिकली. एफ जो एफटीवाई है वो हमारा बेसिकली लूज हो रहा है, फर्स्ट पास यील्ड जो होती है. फर्स्ट पास यील्ड से तो आपको फर्स्ट पास यील्ड इंप्रूव करनी है बेसिकली हमें फर्स्ट पास यील्ड इंप्रूव करनी है. यस सर. फर्स्ट पास यील्ड इंप्रूव करनी है. ओके. तो आरटीएस में तो जाके फंस रहा है सब कुछ, है ना, वो तो लास्ट स्टेज हो गई है ना. जो एसटीआर ही बोलते हैं ना इसको. यस सर. यस सर. आरटीएस सेम ही है ना या डिफरेंट है? नहीं सर, ये टचिंग साउंड है सर, जो हमारा फर्स्ट ही है, फिर पेंट इफेक्ट आ गए, हाई वाटेज एंड हमिंग साउंड आ गया. टचिंग साउंड कहाँ जाके पता चलता है? एसटीआर सर. एसटीआर में सर. एसटीआर में तो प्रॉब्लम तो पहले क्रिएट हो गया होगा ना. बट सर उसकी इंस्पेक्शन तो सर जब वो पूरा फैन असेंबल होगा, बीच में मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है ना सर उसकी टचिंग साउंड वगैरह चेक करने के लिए, वो फाइनली मेरे को एसटीआर में ही पता चलेगा. नहीं, आई एग्री, वो डिटेक्शन स्टेज है. ठीक है सर डिटेक्शन यू आर राइट लोग सर के मतलब वो जनरेशन जो है उसकी एसटीआर में नहीं है, एसटीआर से बैकएंड के जो प्रोसेस है वहां पे नहीं हो रही है. हमें ना फर्स्ट पास यील्ड लेनी पड़ेगी जहां इंप्रूवमेंट करना है बेसिकली. यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि वो सारा नजर तो कहीं और ही आएगा, बट एक्चुअली तो इश्यू तो कहीं और पे होगा ना. राइट सर. हाँ, तो हमें वो वाला प्रोसेस पकड़ना है जहाँ पे इश्यू है.
सो क्या हम नैरो डाउन कर सकते हैं, जैसे कि जैसे टैपिंग नहीं, ये टैपिंग 3% कर रहा है, इसका तो टैपिंग मिस थी, उसमें टैपिंग हुई नहीं थी, व्हाट इज दैट, या वो पेंट में चुप गया था फिर टैपिंग करना पड़ा? सर पेंट एक्चुअली चला गया था उसमें। सर टैपिंग के दो रीजन होते थे हैं। एक तो कि जो वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग का स्पार्टर थ्रेड के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से थ्रेड चोक हो रहा है। सेकंड, पेंट पेनिट्रेशन की वजह से। तो दो रीजन है बेसिकली। एग्जैक्टली तो मेरा प्रोसेस वेल्डिंग हो गया या पेंटिंग हो गया टू इम्प्रूव द टैपिंग, करेक्ट? राइट सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो जो फर्स्ट पास यील्ड किसकी बढ़ानी है, दैट वी हैव टू टेक इनटू प्रायोरिटी। ओके, दैट वी हैव टू टेक इनटू प्रायोरिटी। सर बेसिकली तो FP/Y हमें STR पे ही बढ़ानी है। STR असेंबली लाइन, असेंबली लाइन, हम वी कैन से कि असेंबली लाइन पे FP/Y हमें बढ़ानी है। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम थ्रू बढ़ाना किसका, मैं ये कह रहा हूँ। लिए में पीछे से प्रोसेसेस में अपने काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ, वो वाला प्रोसेस पकड़ो, वो तो डिटेक्शन है, वो तो ठीक काम कर रहा है, वो पकड़ रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, नहीं पकड़ेगा तो कस्टमर पे कंप्लेन जाएगी ना, तो वो तो ठीक ही पकड़ रहा है STR पे, राइट? बट हमारा प्रोसेस में पीछे कहाँ इशू है, वो हमें उधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए बेसिकली। इससे ऐसे लगता है जैसे RTS इज ए प्रॉब्लम और पेंट इज ए, नहीं ऐसा नहीं है ना, हमारा प्रोसेस कहीं और प्रॉब्लमेटिक है ना। बेसिकली सर ये कि हम ये जो हमारी 3 प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं, RTS, पेंट डिफेक्ट और HVNC, तो हम आगे तीनों का ड्रिल डाउन करें कि प्रोसेस ब्रेकडाउन की वो कहाँ से जनरेट हो रही है, ताकि हम जो टेक वाई है वो हमें निकल के आए। इन 3 प्रोजेक्ट मेन हमारे वाई है, इनका टेक वाई निकालें। मैं आपको बताऊं, जैसे CTP वेल्डिंग स्पैटर प्रॉब्लम है, टैपिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, समझाने के लिए। हाँ जी सर। इसका टैपिंग प्रॉब्लम कह रहे हो, मैं इसको स्पैटर प्रॉब्लम इन दी वेल्डिंग प्रोसेस बोल रहा हूँ। CTP वेल्डिंग है, ठीक है। यस सर। कैसे करना है आपको बेसिकली, है ना, कोई भी प्रॉब्लम को। तो आपको ये तो नजर आ रहा है कि ओवरऑल लॉस कहाँ हो रहा है, 30% लॉस हो रहा है, ये ठीक है, और ये 20% आपने ऊपर दिखाया है। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग कैसे देखें, 8% और 22% को अलग अलग, जैसे इसको आपने टैपिंग और रोटर फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट प्रॉब्लम दिखाया है, ऊपर को आपने पेंट, उसमें ये बाइफिकेशन कैसे किया? सर इसका हमने बाइफिकेशन किया है सर। बेसिकली सर जैसे हमारी जो हम छोड़ रहे हैं सर कवर, कितना परसेंट मेरा, जैसे अगर मैंने वहाँ पे कवर कोई सर 1000 पीस सर छोड़े, उसमें सर कितनी रिजेक्शन मेरी सर टैपिंग में निकल गई, कितनी मेरी रोटर फिटमेंट में, कितनी बेयरिंग फिटमेंट में, कितनी एक्सेस फिटमेंट में, उसके बेस पे हमने सर एक लॉट के बेस पे हमें सर हमने इसको डिवाइड किया। और पोस्ट इंस्पेक्शन में हो गया, वो प्रॉब्लम बदल गई क्या? यस सर। अब पोस्ट इंस्पेक्शन में सब रिवर्क करने के बाद में जो फैन बना है वो रिजेक्शन है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ पोस्ट इंस्पेक्शन प्रॉब्लम भी यही है क्या, टैपिंग, रोटर फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एक्सेस पेंट, या नेचर ऑफ प्रॉब्लम भी चेंज हो गया पोस्ट इंस्पेक्शन में? सर रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं से, RTS रोटर फिटमेंट। सर कुछ सर हमारी कुछ फिल्टर हो जाती है सर प्री इंस्पेक्शन में, क्योंकि वो 100% हमारा मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं वो खत्म नहीं होती हैं, वो फिर वो भी सर एक कंट्रीब्यूट करती हैं मेरा पोस्ट इंस्पेक्शन में आफ्टर जब रिवर्क हम करते हैं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, प्री इंस्पेक्शन में मेरे को जो रिवर्क है वो कम है, मतलब प्री इंस्पेक्शन में, पोस्ट में ज्यादा है। सर प्री इंस्पेक्शन में ऐसा है ना सर, जो मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है सर टैपिंग करते हुए, रोटर फिटमेंट करने के टाइम और बेयरिंग फिटमेंट पे, रिवर्क सर ये जो कर रहे हैं, जैसे टैपिंग कर रहे हैं, जो 100% कवर में कर रहे हैं आज के टाइम में। यस सर। और सर ये रोटर फिटमेंट का जो इशू है, कुछ एक बीच में ऐसा मटेरियल 2-3% हमें मिलता है जिसमें रोटर फिट ही नहीं हो पाता, एंड 2% सर बेरिंग है, जिसमें हमारा जैसे 1000 का छोड़ रहे हैं तो उसमें बेरिंग फिट ही नहीं होगा, बेरिंग बाहर ही रहता हो, तो मतलब उसका फैन ही नहीं बनेगा, वो आगे इंस्पेक्शन के लिए नहीं आता है, जाएगा नहीं, मतलब डिस्कार्ड कर दिया लाइन से ये वाला। यस सर, ताकि मेरी लाइन ना डिस्टर्ब हो उस मटेरियल से, वो पहले उसको हटा दिया सर मटेरियल। रिवर्क नहीं है बेसिकली, वो इट इज मोर ऑफ ए, कुछ कर नहीं रहा उसमें, जस्ट रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द लाइन, है ना सर, वो रिवर्क हो नहीं पाया लाइन पे अभी। एग्जैक्टली, तो वो रिवर्क को कंपैरिजन लग रहा था, फिर रिवर्क होगा वो, और उसमें कुछ आपने लिखा ना रिवर्क किया प्री सर, रिवर्क करा है सर, जैसे टैपिंग करते टैपिंग ही खराब हो गया सर। टैपिंग मेरे लिए सर 100% अगर मैं कर रहा हूँ तो एक तरह से रिवर्क ही कर रहा हूँ ना सर, क्योंकि अब वो चाहे मेरा वेंडर एंड से मेरा जनरेट हुआ था कि स्पैटर था उसमें,
और फिर पेंट चला गया, और फिर चाहे वो कोई भी रीजन था, लेकिन असेंबली लाइन पे अगर वो रिवर्क में कर रहा हूँ तो वो रिवर्क में आई थिंक हमें उसको करना चाहिए सर काउंटर। तो प्री इंस्पेक्शन नहीं होगा तो पोस्ट इंस्पेक्शन होना चाहिए ना। पेंट वाले ने तो निकाल के आगे भेज दिया ना, फिर पोस्ट इंस्पेक्शन में आना चाहिए। यहाँ कुछ मेरे को ओवरलैपिंग लग रही है, विच यू प्लीज लुक इनटू दैट डेटा, क्योंकि सर एक 8% है इसमें इंस्पेक्शन नहीं है, मतलब ये हमारा एसटीआर के जाने से पहले जो दिखाना चाहते हैं सर आप बिफोर एसटीआर बोलो ना, फिर आप बिफोर एसटीआर है सर ये। हाँ Yes, तो sir, before STR. इंस्पेक्शन मत बोलो ना, बिफोर एसटीआर को बोलो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। बिफोर एसटीआर है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ना अगर पेंट वाले ने आगे बढ़ा दिया है तो वो तो फिर आगे जाके तो वो इंस्पेक्शन वाला तो पेंट को देखना चाहिए था, फिर वो तो 8% के अंदर पहले ही आ जाना चाहिए था। सो आई थिंक वो बिफोर आपका एसटीआर से बिफोर एंड आफ्टर एसटीआर बोल रहे हो आप बस, ठीक है। नहीं सर एक्चुअली, बट सर पेंट में अगर कोई वहां पे रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, वो सर अपना पेंट की जो क्वालिटी है वो इंस्पेक्शन करेगा ना सर। वो उसको ये नहीं है वहां पे, वो कंसीडर नहीं कर रहा कि इसमें वेल्डिंग स्पैटर तो नहीं है, इसमें पाउडर तो नहीं चला गया, लाइन पे जाके इसमें स्क्रू जाएगा कि नहीं जाएगा। मास्किंग करता है ना, मास्किंग की अगर ज्यादा कहीं और पेंट लग जाएगा तो डिफेक्ट में काउंट करेगा ना, विजुअल डिफेक्ट में। ऐसा थोड़ी ना, क्यों नहीं करेगा, विजुअल डिफेक्ट में करेगा ना। मास्किंग तो रिक्वायरमेंट होती है पेंट में। तो मास्किंग अभी है नहीं हमारे पास, अभी हाँ यूज नहीं है। या वेल्डिंग वाले का स्पैटर इज ए डिफेक्ट, वेल्डिंग में स्पैटर तो हमेशा डिफेक्ट होता है। यस सर। कभी वैसा नहीं होता वेल्डिंग, वो डिफेक्ट मान नहीं रहा, वो अलग बात है। सो मेरे लिए तो वो पोस्ट इंस्पेक्शन ही हो गया ना, कि मेरे पास तक पहुंच गया एसटीआर में। यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब अगर मैं एसटीआर को क्राइटेरिया नहीं मानूं, क्योंकि आपने लिखा नहीं है ना बिफोर एसटीआर और प्री एसटीआर, तो मेरे लिए तो जो सब पोस्ट इंस्पेक्शन ही है फिर लेटर ऑन। अगर आप वेल्डिंग के बाद स्पैटर बंदे ने देखा नहीं, इंस्पेक्ट नहीं किया, तो उसके बाद तो रीवर्क तो सारा मेरे को करना पड़ा। एसटीआर का ही लिखा था, वैसे एसटीआर लिखा नहीं है सर, लिख देते हैं। हाँ बट आई थिंक उसी से कंफ्यूजन आ रहा है, क्लियर हो गया है। मतलब जो एसटीआर से पहले मिला और जो एसटीआर के बाद मिला बेसिकली। ओके सर, बिफोर आफ्टर। हाँ सो इसलिए कंफ्यूजन आ रहा था, अंडरस्टूड दैट। ओके, तो आप इसको ना अभी नैरो डाउन करो, और अभी ना ये, क्योंकि अभी ये पता चल रहा है कि अलग अलग स्टेजेस पे प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल इशू हमारा कहाँ पे है, और वहां पे टेक्निकल वाइज सेलेक्ट कर लो एंड देन यू टेक ए प्रोजेक्ट। अभी इससे ये क्लियर हुआ कि आपका पेन एरिया क्या है, नया मॉडल नया मटेरियल आने से काफी अलग अलग जगह इश्यूज आ रहे हैं और रिवर्क करना पड़ रहा है। सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी प्रोजेक्ट और नैरो डाउन करना पड़ेगा इसमें। ओके सर। ओके सर। क्योंकि अभी बिकॉज इतना मान के चलते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम थ्रू हमारा 70% और 30%, अगर देखिए एक और चीज समझ लेते हैं, सीआरसी अगर प्रॉब्लम है ना, जो क्या कोल्ड रोल्स वही है ना, कार्बन स्टील की बात ही कर रहे हो ना, क्या है? यस 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 सर, यस सर। हाँ ठीक है। अगर आपका देखो मटेरियल ही प्रॉब्लम होता तो फिर 100% सारे ही खराब बनता है ना। इसका मतलब कुछ तो वेरिएबिलिटी है जो हैंडल नहीं हो पा रही है। 70% केस में हैंडल हो पा रही है और 30% केस में हैंडल नहीं हो पा रही है, विच इज कन्वर्टेड इनटू यू नो फर्स्ट टाइम थ्रू नहीं हो पा रहा। इसका मतलब उस मटेरियल में वेरिएशन तो ज्यादा है। यस सर। लेकिन भी ये समझना पड़ेगा ना, जैसे अगर स्पैटर वो वेल्ड कर रहा है तो 70% के स्पैटर नहीं आ रहा है ना, तो स्पैटर नहीं आना चाहिए उसको फिर सीआरसी, क्योंकि वेल्डिंग पहले होती नहीं थी ना, तो वेल्डिंग प्रोसेस टू बी इम्प्रूव्ड। इट इज नॉट नहीं सर 70% जो है ना मटेरियल, वो टैपिंग के बाद हमारा ओके हो गया। टैपिंग की है उसमें भी सर हमने 100%। सर टैपिंग सर 100% ही कर रहे हैं हर एक कवर में। इस मॉडल के लिए प्रोसेस का पार्ट बन गया टैपिंग। प्रॉब्लम कितनी है एक्चुअली इशू? 100% डिफेक्टिव तो बन ही नहीं सकता किसी जगह। स्पैटर 100% स्पैटर तो आ नहीं सकते। ऑर्डर भी आ जाता बाद में स्पैटर। हाँ तो उसको बोल वो एक बार सैंपल सर दैट इज ओके एज ए स्ट्रेटेजी कि अब तो सबको टैपिंग कर ही दो, पता नहीं क्या इशू आया तो यू डू दी टैपिंग 100%। बट मुझे प्रोसेस का तो वो निकालना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। ओके सर। क्योंकि देखो यार वेल्डिंग हो रहा है तो वेल्डिंग में तो स्पैटर एक इशू होता ही होता है, तो अगर वो तो किसी भी वेल्डिंग में होता है, बट दे मैनेज इट। ठीक है, पहले आप वेल्डिंग नहीं कर रहे होगे क्योंकि आपका वो जो ब्रैकेट तो लगना नहीं था ना जिसमें आपको स्क्रू जाना था। सो मे बी दिस प्रोसेस हैज बीन एडेड, एम आई राइट? पहले वेल्डिंग तो नहीं हो रहा होगा ना, पहले कास्टिंग, पहले तो कास्टिंग के अंदर ही हो रहा होगा ना, मशीन जो भी करना होगा। यस सर। बाकी सर जो मॉडल्स हैं हमारे, वो जो एल्यूमिनियम है वहां पे सर कास्टिंग में ही आता है वो, वहीं से वो टैपिंग करके देते हैं उसको। सो इन्होंने वेल्डिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है, बट मैं आपको अपने वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वेल्डिंग का मतलब ये नहीं है 100% स्पैटर देगा।
can be improved. ठीक है, welding is a process which is new for you, which has been introduced, but welding is a very widely used technology throughout the manufacturing and automotive world. तो ऐसा नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं लगा रखे होंगे, तो we'll look into that. तो अभी ठीक है, एक बार ये प्रॉब्लम डेफिनेशन आ जाए ना, टेक वाई हमें इशू क्या पकड़ना है ना, सो देन विल रिजॉल्व इट. और ऐसे आपके और भी जो आपका वेरिंग का प्रॉब्लम है, जो फिटमेंट का जो आपने लिखा है ना, Yes, sir. या तो उसके लिए जो टेक वाई निकालो कि जो अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, या उसमें पैरामीटर कौन सा वेरी हो रहा है सीआरसी में, बेंडिंग करते हुए, ड्रॉ करते वक्त, मतलब उसका क्रिटिकल पैरामीटर बताओ जिसको हमें वेरिएशन को इम्प्रूव कराना है. ओके सर. Okay, sir. देखो टेक वाई पकड़ो आप इसका. ये तो क्लियर हो गया, मटेरियल नया है, सो दैट इज फाइन, बट उसका भी तो कोई स्पेसिफिकेशन होगा ना ड्राइंग का, जिसमें प्रोफाइल होगा, ड्राइंग होगा, जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका भी वी हैव टू कवर द पैरामीटर, और उसका वेरिएशन फिर नोट डाउन करेंगे कितना है क्या है. सो अलग अलग प्रोसेस का ना आप एक टेक वाई निकाल लो, फिर उन टेक वाई में से विल टेक सर्टेन प्रोजेक्ट. Okay, sir. मल्टीपल टेक वाई को नैरो डाउन करेंगे. Okay, sir. Noted, sir. ओके Okay, sir. ओके, थैंक्स अ लॉट. Okay, thank you, sir. आपने एक बार बोला था ना गेज आपका. Yes. So I think we have covered everyone's project. किसी का ऐसा तो नहीं छूट गया? Yes. Yes, sir. I think we covered all. We covered. Okay. So that was good. So I think everybody must have noted down their action point which they have to complete within a time frame. And जो वीक हमारा अब नेक्स्ट जाएगा वो हम लोग ट्रेनिंग और आगे उसके लिए यूटिलाइज करेंगे बेस्ड ऑन द म्यूचुअल शेड्यूल. जो भी हम लोग एग्री करेंगे तो हम लोग एडवांस में बता देंगे. और कुछ अभी प्रोजेक्ट देख लिए तो कुछ नए टूल्स भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट यू गेट अकस्टम टू दोज पर्टिकुलर टेक्निक्स. जैसे प्रोडक्टिविटी का कुछ है तो वो हम लोग वहाँ पे भी कुड अंडरस्टैंड कि कैसे करना है. और जो विच इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, जैसे अभी लॉजिस्टिक्स का है या ये लोडिंग अनलोडिंग का, सॉरी ये व्हीकल यूटिलाइजेशन का है. सो वी आल्सो टेल यू द अदर टूल व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स. ओके, so thanks a lot. Next schedule will inform you in advance, which will be more of a training, not project review. तो आप अपने एक्शन पॉइंट को जरूर एक जगह कहीं लिस्ट डाउन कर लीजिए, so उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे, तो उन्हीं एक्शंस को करेंगे जो हमने डिस्कस किया है. So again not repeated so that we can save on time. और आप इन बिटवीन भी मुझे मेल कर सकते हैं कि ये हो गया है या यू फेसिंग सम प्रॉब्लम. So anybody, they are free to communicate whenever they have any queries and issues other than the formal project reviews. Right? Okay, thanks a lot. Anything you want to say? Or Thank you Alok, thank you Naveen, and thank you all the team members. Thank you very much. Thank you, sir.